ہم لوگ ہیں دنیا میں۔ حافظ الحدیث جن کو 1,00,000 حدیث یاد تھی، پھر 1,00,000 حدیث زبانی لکھی، ہر حدیث کے سامنے درود پاک لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا آسمان کے اوپر فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آگے کھڑا ہے، فرشتے پیچھے کھڑے ہیں۔ ابو زرع یہ مقام کس طرح ملا؟ فرمایا جب بھی آقا کی حدیث لکھتا تھا ساتھ درود لکھتا تھا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کا تو نے احترام کیا، چل فرشتوں کی جماعت کرو، سبحان اللہ۔ آسمان کے اوپر کھڑا ہو جا اور فرشتوں کی جماعت کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود جو پڑھنا ہے، درود مقبول دعا ہے، انشاءاللہ، ایکسپٹڈ، جو دعا اس کے ساتھ لگے گی وہ بھی قبول۔ انشاءاللہ۔ جیسے انجن نے جانا ہوتا ہے کراچی، جتنے ڈبے ساتھ جڑتے جائیں گے وہ بھی کراچی، درود شریف پہلے پہنچا ہوا ہے، قبول ہے، اللہ کے ہاں ایکسپٹڈ ہے، اللہ کے عرش پر پہنچا ہوا ہے، جو دعا اس کے ساتھ لگے گی وہ بھی ساتھ قبول ہوتی۔ فرمایا ایک درود شریف پڑھو گے اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 دفعہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ نے چاہا جنت بن گئی، اللہ نے چاہا جہنم بن گئی، اللہ نے چاہا کائنات بن گئی۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہو جا، ورنہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام مسلسل کر رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور علماء جانتے ہیں، جو عربی گرامر سمجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں کہ بھیجتے ہیں ایک دفعہ بھیج دیا پھر بیٹھ گئے، یصلون مسلسل بھیجتے رہتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ارد گرد صبح فجر کے بعد 70,000 فرشتے آئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مگر شام کو تبدیل ہو جائیں گے، 70,000 پھر آئیں گے، پھر درود السلام پڑھ رہے ہیں۔ جو ایک دفعہ فرشتہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ایک وقت آئے گا سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اس وقت بھی فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، پھر فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، فرشتے درود، ہم سب مر جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس وقت بند ہو جائے گا، لیکن ایک ہستی اس وقت بھی پڑھ رہی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قربان جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جیسی ہستی آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے، قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ تو جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام جب بندہ کرے گا وہ اللہ کس کو کتنا بلند کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت چاہتا ہے وہ درود و سلام پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے درود پڑھا کرے۔ ایسی ہستی ہے، آئی ہے تو امت کی فکر، 63 سال ہے تو امت کی فکر، جاتے ہوئے امت کی فکر۔ جس وقت جا رہے تھے جبریل علیہ السلام کو بلوایا، پہلے پوچھ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر جواب دوں گا مجھے جانے کے نہیں۔ علماء فرماتے جاتے جاتے یہ مسئلہ حل نہ کرتے، جاتے جاتے یہ مسئلہ حل نہ کرتے، ہم سارے خنزیر اور بندر بن چکے ہوتے۔ جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے عیوب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کر درود و سلام، بڑا شکی ہے، بڑا بدبخت ہے جو آپ کا نام سنے گا پھر بھی آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ مختصر ترین ٹو دی پوائنٹ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بھی ہے اس کے اندر، سلام بھی ہے۔ یہ درود آپ کی ذات و برکات پڑھیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں
जो 100 दफ़ा सुबह पढ़ेगा, 100 दफ़ा शाम पढ़ेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत के उसके काम बनाएंगे। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई घड़ी दे दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दरूद पढ़ता हूँ, एक हिस्सा दरूद पढ़ लेता हूँ, 3 हिस्से दुआ मांगता हूँ। आपने फरमाया काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, फिर इस तरह करता हूँ, आधा दरूद कर लेता हूँ, आधी दुआ कर लेता हूँ। या रसूलुल्लाह, इतना पढ़ लूँ? फरमाया हाँ, ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 हिस्से दरूद पढ़ लेता हूँ, 1 हिस्से दुआ पढ़ कर लेता हूँ। आपने फरमाया काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। फिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, फिर मैं यूँ करता हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ और आपकी ज़ात बबरकात पर सिर्फ दरूद और सलाम पढ़ता रहता हूँ। फरमाया बेटे, फिर तेरे दुनिया और आखिरत के सारे काम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। जो टेंशन रिलीज प्रोग्राम चाहता है, जो ये चाहता है मुझे टेंशन ना हो, जो ये चाहता है मुझे दिल की बीमारी ना हो, जो कहता है मेरा दिमाग खराब ना हो, जो कहता है मुझे चीज़ें ना भूल जाएं, जो कहता है मुझे मेरा दिल ना घबराए, जो कहता है मुझे तबखीर ना हो, जो ये कहता है कि मुझे कोई परेशानी ना लाहक हो, प्यारे आका पर बावजू होकर दरूद पढ़ें, तमाशा फिर देखें अल्लाह सारी बीमारियां किस तरह दूर करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वा नमूना को भी कहते हैं, लेकिन बद्दू की ज़ुबान में आप जाकर बद्दू से पूछें उस्वा का मतलब क्या है। उस्वा कहता है, उस्वा बद्दू ने तर्जमा ये किया है। उस्वा फरमाया, उस्वा उसको कहते हैं जिस बंदे को कोई बीमारी लग जाए, किसी को कोई दुख लग जाए, किसी को कोई परेशानी लग जाए, किसी को कोई टेंशन लग जाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आए, उसकी सारी टेंशनें, सारी बीमारियां, सारे दुख दूर हो जाए, उसको उस्वा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, परेशानियां दूर करना चाहते हो, टेंशनें खत्म करना चाहते हो, दुख खत्म करना चाहते हो, और कातिल से फारूक आज़म बनना चाहते हो, और मालदार से सिद्दीक अकबर बनना चाहते हो, मक्के के मालदार से उस्मान ज़ुन्नरैन बनना चाहते हो, खेलते हुए बच्चे से हैदर करार बनना चाहते हो, बकरियां चराने वाले से अब्दुल्लाह इब्न मसूद बनना चाहते हो, और माँ को मारने वाले को, माँ से लड़ने वाले को हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा बनना चाहते हो, सारी कायनात में सहाबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल और नेक बंदा ना चाहते हो, मेरे नबी के दर पे आओ। उस्वतुन हसना, खूबसूरत नमूना सिर्फ यहाँ मिलेगा। टेंशन तुम्हारी यहाँ पर ख़त्म होगी, ये काम करो सारी परेशानियाँ ख़त्म होगी। करके देखो, बावजू होकर अत्तहियात की शक्ल में मदीने का तसव्वुर करके, रोज़े रसूल का वजह करीम तसव्वुर करके, दुरूद और सलाम पढ़ कर देखे, तमाशा फिर देखे, इंशाल्लाह सारी परेशानियाँ ना दूर हो, मुझे आके पकड़ लेना। तीसरा, काब बिन उजुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीस बयान की है, फरमाया अल्लाह के हबीब ने कदम रखा तीसरी सीढ़ी पर, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और आप बैठे, और आप जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपने आमीन फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर ले। माँ बाप का कोई एहसान न हो, बाप का कोई एहसान न हो, सारी ज़िंदगी तुम्हें मारता रहे, जुल्म करता रहे, तुम्हारी ज़मीनें छीन ले, एक भी तुम्हें हक न दे। बाप का सबसे बड़ा हक, जो मुसलमानों और पाकिस्तानियों में तुम्हें बता रहा हूँ, बाप का जो सबसे बड़ा एहसान क्या है, तुम्हें पहचान करवाता है। तुम उसी की पहचान हो। मुझे कोई कहे कि किसके बेटे हो, मैं सोचने लग जाऊँ, आप कहेंगे हराम का है, इसको बाप का नहीं पता। मुझे कोई कहे किसके बेटे हो, मैं सोचने लग जाऊँ, बताता हूँ जी, सोच के बताता हूँ जी, पूछ के बताता हूँ जी। लोग कहेंगे इसको बाप का नहीं पता, ये हराम का है। एकदम मैं कहूँगा मैं डॉक्टर शाहनवाज का बेटा हूँ, सारे आप समझेंगे डॉक्टर शाहनवाज का बेटा है, हमें पहचान इसकी मिल गई। कुछ भी ना बाप करे, बाप ने मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, लेकिन मेरी पहचान मेरा बाप है, ये सबसे बड़ा एहसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बगैर मुझसे पूछे मैं कमाता हूँ, मेरा बाप मेरा माल खर्च कर देता है, पूछता भी नहीं। मिसाल के तौर पर बकरियां मैं जंगल में चराता हूँ और बगैर पूछे जब ज़रूरत पड़ती है एक बकरी बेच देता है और मुझे पूछता भी नहीं। और बहुत सी उसने शिकायतें की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाप को बुलवाओ। बाप को बुलवाने के लिए जब गए, बाप जब आ रहा था रास्ते में, आते आते दिल में उसने दुखिया अशार कहे, दुखिया अशार कहे। अब वो आ रहा है घर से चलता हुआ, दरबार अक़दस में हुजूर ने बुलवाया है, बेटे ने आके शिकायत की है, दुखिया अशार दिल में पड़ रहा है। बाप के पहुंचने से पहले नूरानियों का सरदार जिब्रील आ गया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो दुखी बाप आ रहा है ना, इसको कहो पहले वो शेर सुनाए, बाद में आप इसकी सुनना, बाद में जो सज़ा इस पर लागू करना। वो
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। बाप जब पहुंचा दरबार अक़दस में, या रसूलुल्लाह खैर है, मुझे बुलाया है। फरमाया तेरी बात मैं सुनूंगा, जो रस्ते में तूने शेर पढ़े हैं ना वो सुना। अर्ज़ किया अल्लाह या रसूलुल्लाह, हम पहले भी आपके रब पर ईमान लाए और आपका रब हमारा ईमान बढ़ाता ही रहता है। मैंने तो दिल में ही सोचा था, आपके रब ने वो भी पढ़ लिए और आपको बता दिए। या रसूलुल्लाह, मैंने ये कहा था, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, आज की अपनी ज़ुबान में अपने गांव की सकाफ़त के लिहाज से मफ़हूम ये बयान कर रहा हूँ। बेटा मैंने बड़ी मन्नतें मानी थी कि तू मेरे हो जाए। बेटा मैंने बड़े तरले किए थे कि तू मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हो जाए। जब बेटा पैदा हुआ मैंने मिठाइयाँ बांटी थी, लोगों ने ऐलान करवाए थे मस्जिद में, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। लोगों ने आके मुबारकें दी थी, तेरे बेटा पैदा हुआ। फिर क्या हुआ, मैं तुझे पालता रहा और कितनी दवाइयाँ मैंने तेरे जिस्म के अंदर उतार दी। मैं धूप में पेय लगाता था, अमरूद बेचता था, सुबह शाम तक 100 रुपये बनते थे, मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये बनते थे, जोड़ के जाता था कि मेरे बेटे को मैंने कपड़े दिलाने हैं, मैंने खाना खिलाना है, और मैं इस तरह से तुझे पालता पोसता रहा। और मैं यूँ समझता रहा कि जब तुझे जवानी की तरंग आ जाएगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में तू मेरा सहारा बनेगा। लेकिन तूने क्या किया, हुजूर के पास आके मेरी शिकायत लगा दी। बेटे चलो तू बेटा जैसा सलूक न करता, पड़ोसियों जैसा ही कर लेता। ये आखिरी शेर उनका, बेटे जैसा ना करता, पड़ोसियों जैसा ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर और आप इतना रोए, रावी कहता आप हिचकियां लेके रोने लगे। और आप, मैंने शुरू में बताया, आप रहमतुल लिल आलमीन है, आपने ये कभी नहीं किया। लेकिन बाप के दुखिया अशआर पर आपने बेटे का गिरेबान पकड़ के उठा दिया, फरमाया निकल जा मेरी मजलिस से, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप। जन्नत का बड़ा दरवाजा है, चाहे राजी करके खुलवा लो, चाहे नाराज करके बंद करवा लो। इसी तरह माँ के कदमों के नीचे जन्नत। एक सही किताबों के अंदर सही वाकया लिखा है, एक बंदा कब्र के अंदर से निकलता और कब्र से के अंदर बाहर निकल के गधे की आवाज निकालता 3 दफा असर के बाद, गधे की तरह, बिल्कुल गधे की आवाज निकालता कब्र से। ये जो रिवायत करने वाले इमाम हैं वो मौजज़ात को और इस तरह की बातों को कम मानते, उन्होंने लिखा है, अभी मेरे जहन से नाम उनका निकल गया। उन्होंने लिखा असर के बाद निकलता, गधे की तरह हिनहिनाता, फिर कब्र में चला जाता। उन्होंने और लोगों को भी दिखाया, जब दिखाया लोगों से पूछा भाई ये क्या करता है, कब्र से निकलता है, गधे की तरह हिनहिनाता है, फिर कब्र में चला जाता है। कहा माँ का बड़ा गुस्ताख था, माँ जब शराब पीता था माँ कहती थी बेटा शराब ना पिया कर। बाप शराब पीने से बेटी माँ बहन की तमीज नहीं रहती, बेटा शराब ना पिया कर। आगे से कहता क्या गधे की तरह हिनहिनाती रहती है, क्या गधे की तरह हिनहिनाती रहती है। अल्लाह ने आलम बरज़ख के राज पोशीदा रखे हैं, लेकिन इसको यहाँ पर ये सजा दी है कि यहाँ से कब्र से निकलता है और गधे की तरह हिनहिनाता और वापस चला जाता है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मौजू आगे चलाएंगे अगले जुमे को। हमारे पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया, हमारे बहुत बड़े इमाम हैं और बहुत बड़े जो है वो मुफस्सिर मुफ्ती आज़म, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म हैं, मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनके 4-5 बेटे बड़े काबिल हैं। उनमें से इस वक्त दुनिया की जो बड़ी हस्ती है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फतवा पूरी दुनिया में बगैर किसी मसलक की कैद के उनका माना जाता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती वली राजी रहमतुल्लाह अलैह और जो है वली ज़की रहमतुल्लाह अलैह। 4-5 बेटे सारे के सारे काबिल हैं। उनके बाप थे मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, पूरे बर्रे सगीर के सबसे बड़े मुफ्ती थे। कुरान पाक की तफसीर लिख रहे थे, मुआरिफुल कुरान, ये मेरी अलमारी में पड़ी कोने में, कुछ गालिबन मैंने भाई सरवर से ली। कुरान मुआरिफुल कुरान यहाँ पर पड़ी है, ये वो लिख रहे थे कुरान पाक की तफसीर। माँ शदीद बीमार हो गई नज़ा के आलम में, इन्होंने 4-5 बेटों को खिदमत पे लगा दिया, अपनी बहुओं को खिदमत पे लगा दिया, बेटियों को खिदमत पे लगा दिया कि मैं मदरसे में मसरूफ़ हूँ कुरान पाक की तफसीर पूरी दुनिया से जमा करके मवाद लिखने के लिए, ताकि पूरी 6 बर्रे आज़म में फ़ायदा हो। बड़ी तफसीर थी, कुरान पाक की तफसीर लिख रहे थे। माँ बीमार थी, सारी बहुएं बेटियां बेटे पोते खिदमत करने वाले, और आखिर माँ बीमार होके मर गई। मुफ्ती साहब पास आए, वापस आए, जनाजे में पहुँचे, पूछा बेटा अम्मा के आखिरी अल्फाज क्या थे।
کہا ہم خدمت کرتے تھے نا، کھانا دیتے تھے، روٹی ہاتھ سے کھلاتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، اس کے منہ پہ ایک ہی لفظ ہوتا تھا، شفیع نہیں آیا، شفیع نہیں آیا، شفیع۔ یوں کہتے کہتے اماں فوت ہو گئی۔ مفتی اعظم کی ماں فوت ہو گئی۔ مفتی صاحب نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد ساری سامعین کو بلایا اور ایک فقرہ لکھا، جملہ لکھا، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ جملہ کیا تھا؟ کاش میں قرآن کی تفسیر نہ لکھتا اور اس وقت ماں کی خدمت۔ علماء میرا نقطہ سمجھیں گے، کاش میں اس وقت قرآن پاک کی تفسیر نہ لکھتا اور ماں کو آخری وقت خدمت کے لیے کسی اور کے حوالے، جن کے زندہ اللہ کے واسطے قدر کرو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور ماں کہہ رہی ہیں ابا نے کیا پتا نہیں بلندر ہوئے تو میری نا نظروں کے سامنے ابھی بوڑھے جو رول رہے ہیں، میری نظروں کے اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی بوڑھے بوڑھیاں جو رول رہی ہیں نا، اللہ کے واسطے نوجوانوں قدر کر لو، ورنہ لینے کا دینا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، لینے کے دینے، ایک زنا اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ جس طرح تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ رول رہے ہیں، بڑھاپے میں ہم بھی یوں ہی رولیں گے۔ جو قدر کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی روزی میں بھی برکت دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے مزے ہوں گے۔